ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا ملاقات میں مانے رہا، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد. تو ہم ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. مدارس بل ایکٹ بن چکا، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ، مدارس بل متنازع نہیں، پارلیمنٹ نے منظوری دی، دستخط ہونے چاہیے. حکومت کیوں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی؟ صدر آصف علی زرداری سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ بھائی ہیں. ہمارا موقف آئین اور قانون کے تابع ہے. JGI سربراہ فضل الرحمان کے اجلاس کے بعد گفتگو. مدارس بل قانونی شکل اختیار کر چکا ہے، بل کا فوری گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. حالات کو بگاڑنا کسی کے مفاد میں نہیں، ہم مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں. مفتی منیب الرحمان. مدارس بل پر غور کے لیے اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس. مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان کی شرکت. مولانا حنیف جلندری، پروفیسر ساجد میر، علامہ افضل حیدری بھی شریک ہوئے. مستحکم معیشت اور مہنگائی میں کمی کا اضطراب. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی. شرح سود 15 سے کم ہو کر 13% رہ گئی. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. رواں مالی سال شرح سود میں 9% کمی کی جا چکی. مسلسل 5ویں بار شرح سود میں کمی کی گئی ہے. معاشی اعداد و شمار کے تفصیلی جائزے کے بعد شرح سود میں 2% کمی کا فیصلہ کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وزیر اعظم کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم. پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے. پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. کم افراط زر کی شرح کو بدولت پالیسی ریٹ میں کمی آئی ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی. معیشت کی بحالی کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہے. وزیر اعظم شہباز شریف. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم. مارکیٹ 1,16,169 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند. 100 انڈیکس میں 1,868 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 2300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا 278 روپے 17 پیسے کا ہو گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکورٹی صورتحال پر اہم اجلاس. وفاقی وزراء، اعلیٰ سیکورٹی حکام شریک. ملک میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت اہم امور زیر غور. وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام کی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وفاقی کابینہ ECC کے فیصلوں کی توثیق کرے گی. تحریک انصاف سول نافرمانی سے متعلق ابہام کا شکار نہیں. سول نافرمانی پہلے مرحلے میں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہوگی. مذاکرات کی ہماری آفر موجود ہے. امید ہے کہ 1-2 دن میں پیش رفت ہوگی. ملک میں سیاسی عدم استحکام اب ختم ہونا چاہیے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو. خواجہ آصف نے PTI کے ساتھ مذاکراتی عمل کو مذاکرات قرار دے دیا. مذاکرات کرنے ہوں تو زبان کو خاموش اور لہجے کو نرم رکھنا پڑتا ہے. تحریک انصاف کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حکومت سے مذاکرات کا آغاز بانی PTI کو کرنا چاہیے. بانی PTI کے علاوہ تحریک انصاف میں کسی کی حیثیت ہی نہیں. PTI نے ہمارے ساتھ ابھی تک رابطہ نہیں کیا. PTI حکومت کو بتائیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. PTI پہلے رابطہ کرے گی تو اس کے بعد ہم کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. دیکھنا ہوگا PTI والے 26 نومبر سے پہلے کس زبان میں بات کر رہے تھے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. PTI سول نافرمانی کی تحریک ابھی شروع نہیں کر رہی. شوکت یوسفزئی نے وجہ بتا دی. مذاکراتی کمیٹی نہ بنتی تو سول نافرمانی تحریک شروع ہو جاتی. مذاکرات کی وجہ سے سول نافرمانی کی تاریخ فائنل نہیں ہوئی. مذاکرات نہیں ہوتے تو شاید بانی کسی نئے لاہ عمل کا اعلان کر دیں گے.
तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी को मजबूर किया। बानी पीटीआई से दरख्वास्त की इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हुकूमत से मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। हमें उम्मीद थी हुकूमत मुस्बत जवाब देगी। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचगाना है। हुकूमत समझ रही है पीटीआई कमज़ोर पड़ गई, हकीकत में ऐसा नहीं है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। जो खान साहब की जो ख्वाहिश है या जो चल रहा है वो यही है कि हम मुज़ाकरात बहरहाल जो है वो शुरू करें, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज के साथ हो। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, और हुकूमत इसलिए मुज़ाकरात नहीं करेगी कि टेम्परेचर नीचे लाना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सूट ही नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अब किरदार अदा करेंगे, इंसानी हकूक के हवाले से किरदार अदा करेंगे। बाकी उनको भी पता है कि उन्होंने आगे कोडियाला जेल की चाबी लेकर नहीं आ जाना। हुकूमत ऐसे हालात पैदा करती है कि लड़ाई रहे। बानी को रिहा कराने के लिए माहौल को ठंडा करना होगा। पीटीआई को अपोजिशन अलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए। इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए। बानी से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र हुआ। बानी को भी पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कोई चाबियां लेकर जेल नहीं आना। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। इस्लामाबाद में नाकाम एहतजाज के बाद पीटीआई ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। लाशों के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तजाद है। इस्लामाबाद में लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के पास कोई सबूत नहीं। जब कुरम में लाशें पड़ी थीं उस वक्त अलीमीन गंडापुर विफाक पर लश्कर कशी में मसरूफ थे। काश उस वक्त अलीमीन गंडापुर ने अमन व अमान पर तवज्जो दी होती तो आज ये नौबत ना आती। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अता तारड़ को फ्लोर मिलने पर अपोजिशन की नारेबाजी, डिप्टी स्पीकर का नारेबाजी पर इज़हार बरहमी। क़यादत ने पीटीआई को मम्मी डैडी से दहशतगर्द जमात बना दिया। इरफान सिद्दीकी की खुलकर तनकीद, मुल्क की सलामती दाव पर लगाने और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ एक तबका ऐसा है जो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। इस तबके को हम पाकिस्तान दोस्त तस्वुर नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये तबका तरीक़ाकार बदले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। ये एक तबका मौजूद है जो सोशल मीडिया को कभी सहारा लेता है, कभी मीडिया के किसी और टूल का सहारा लेता है। इनको हम पाकिस्तान दोस्त तस्वुर नहीं करते। हम इसको यकीनी बनाएंगे कि जहाँ वो सिलसिले ख़त्म हो, वहाँ एक पुरअमन एहतजाज के लिए पुरअमन तरीके से, महज़्ज़ब तरीके से जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी आवाज़ों को ना कुचला जाए और वो कल्चर आम ना किया जाए जो पाकिस्तान का, जमहूरियत का और हमारा कल्चर है। GHQ हमला केस में 9 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायद शीरी मज़ारी, राशिद हफीज़, खादिम हुसैन खोखर, ज़ाकिरुल्लाह शामिल। महर जावेद, मुनीर, ताहिर सादिक और अज़ीमुल्लाह खान भी फर्द जुर्म पर आयद। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर, सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्मायद ना हो सकी। अडाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मुलजिम शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर ज़ेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। मुल्ज़मान का मौक़िफ़। केस में कुल 98 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायद हो चुकी है। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 23 मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अलीमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़मान के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने पेश किया। बिल के तहत 17 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, FDR, नादरा चेयरमैन हिस्सा होंगे।
कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राब्ताकारी का फरीजा अंजाम देगा। बिल के तहत पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। डिजिटल मास्टर प्लान का मकसद पाकिस्तान को एक डिजिटल कौम में तब्दील करना है। मास्टर प्लान के तहत डिजिटल मईशत तश्कील दी जाएगी। पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। MPs की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़कर 4,51,000 होगी। असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के अडाला जेल आमद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अलीमीन गंडापुर अडाला जेल के बाहर से वापस लौट गए। अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला को मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। हुक्म अदूली पर अदालत से रुजू करेंगे। सूबे के वज़ीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। पहले तो गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधा सीधा उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। आइन से बालातर तो कोई नहीं है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पे लगा दे। गवर्नर की तकर्री के लिए मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जब से वज़ीर आला बना हूँ 4 से 5 गवर्नर आए, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। गवर्नर वज़ीर आज़म के ताबे होता है। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ, आइन से कोई बालातर नहीं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सबसे पहले पाकिस्तान सियासी मामलात बाद में। पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। जैसे ही मैंने कोशिश की है, उम्मीद है वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। सेनेटर फैसल बोडा का ट्वीट लिखा कि वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत और दीगर अमूर पर कोशिश की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। उम्मीद है कि मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुमोटो की पावर वापस ले ली गई। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का इजरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। अदालती इस्लाहात, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त का जायजा, केस मैनेजमेंट, तरबियती प्रोग्राम, फीडबैक मैकेनिज्म के क़याम का भी जायजा। इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए है। इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। चीफ जस्टिस का अदालती इस्लाहात में जजेस, वकला और अवाम के ताउन की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अदालती इस्लाहात के तमाम शोबों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। डीचो के एहतजाज केस गिरफ्तार 188 मुलजमान अदालत में पेश। ATC ने 61 मुलजमान को मुकदमात से बरी कर दिया। सहाला पुलिस की मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद।
عدالت نے 31 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تھانہ اپارہ پولیس نے 94 ملزمان کو عدالت پیش کیا۔ 4 ملزمان مقدمے سے بری۔ عدالت نے 90 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ ترنول پولیس نے 63 ملزمان کو عدالت پیش کیا۔ 57 ملزمان مقدمے سے ڈسچارج۔ 6 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ATC جج نے کمرہ عدالت میں بری ملزمان کی ہتھکڑیاں کھلوا دیں۔ ڈسچارج، کسی ملزم کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت کا پولیس کو سختی سے حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا خود پولیس وین تک آ گئے۔